Okay, so hello my dear friends guys. First of all, happy Sunday because today is 29th of June and today is Sunday, so I'm gonna starting this from today, okay? So today is a very special day for me and for you also because from today I'm gonna starting a batch which is 2 months marathon for SSC type government exams. Of course, I'm talking about MTS, CHSL and CGL and more of the government exams like IB, banking, clerk, railway and all. Okay, so without wasting our much of time, directly let's begin to our video and let's learn the few points. First of all, this is our Educate India channel related to only and only education. Okay, a free learning platform, we can say that. Of course it is, because in this channel you can learn many things, like you can learn mathematics, physics, chemistry, maths. I will start batch from after 2 or 3 months. Okay, currently all of the government exams, their dates have been declared and that is why I have to start this. Okay, and from today, in fact each Sunday I will upload a single video of 100 MCQ, and this is one of the most first video series of history subject, 100 MCQ, and these MCQ gonna very much important for you with background explanation. Alright, so without wasting our much of time, directly let's begin to our video and let's learn 100 MCQs with background. Okay, and here is our first number MCQ. So let's begin the part. Who was the founder of the Maurya Empire? Option is given: Chandragupta Maurya, Asoka, Bindusar, Bimsar. First of all, Chandragupta Maurya, the correct option is option number A. Chandragupta Maurya was the founder of Maurya Empire. Okay, with the help of Chanakya. With Chanakya's help, he established the Maurya Empire. Okay, after defeating Dhananda. Okay, Nand dynasty. All right. So after the defeating Dhananda in around 322 BCE, Chandragupta established Maurya Empire. Okay, with the help of Chanakya, and that is how the founder of Maurya Empire is called Chandragupta Maurya. Okay, now the son of Chandragupta Maurya, first of all, Chandragupta Maurya wife name Helena, okay, and Nandini, and of course one more, Durdhara. Okay, so Chandragupta and Durdhara's son Bindusar and his wife son is Asoka. Okay, and Bindusar wife name was Dhamma. Okay, Dhamma, not Dharma, Dhamma, and the son name was Asoka. Okay, Asoka. Of course, I am talking about Samrat Chakravarti Asoka. Alright, now we will study further. Question number 2 is: the capital of Maurya Empire was? The capital of Maurya Empire was Ujjain, Patliputra, Rajgir or Taxila. Of course, the correct answer is Patliputra. Okay, Patliputra. Modern Patna, administrative and cultural hub under Mauryas. Okay, Kalinga War was fought in which year? Very crucial question, guys. This is that Kalinga War was fought in which year? Fought by Asoka, leading to his conversion to Buddhism. Okay, fought by Asoka, and the year he was fought 261 BCE. Okay, around 261 BCE, Kalinga War was fought. All right, by Asoka. Okay, leading to his conversion to Buddhism. Okay, conversion to Buddhism means he was a favor on Buddhism. Okay, yeah. Next is: who is known as Napoleon of India? Most crucial question. Okay,
ये CGL के 2017 में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन है आ चुका है। सो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। ओके, ड्यू टू हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अक्रॉस इंडिया, उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच रूलर? ऑफ कोर्स इलाहाबाद पिलर की अगर बात हो रही है सो वो भी समुद्रगुप्त के अचीवमेंट के थ्रू ही बनाया गया था। ओके, कंपोज बाय हारी सेना एंड डिस्क्राइब समुद्रगुप्त अचीवमेंट को दर्शाता है वो। ओके, द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर वाज वन एंड ओनली नन अदर देन श्री गुप्त। ओके, श्री गुप्त इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज विच इज 7th नंबर क्वेश्चन एंड ये CGL के 2016 में आ चुका है उस एग्जाम में। ओके, PYQY है। द फेमस आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली बिलोंग्स टू विच पीरियड? मौर्य, गुप्ता, मुगल एंड सल्तनत। सो द करेक्ट आंसर इज गुप्ता। ओके, built during Chandragupta, its reason shows advanced metallurgy. All right, the next one is here it's presenting who was the founder of the Mughal Empire? One and only Babur. Okay, after defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat around 1526. Okay, Babur defeated Ibrahim Lodi. Okay, now the Battle of Plassey was fought in 1757. Okay, between British Clive and Siraj-ud-Daulah, marked the start of British rule. Okay, next one is the capital of Sher Shah Suri was? सो क्रूशियल क्वेश्चन, CHSL के 2018 में आ चुका है ये। ऑप्शन इज आगरा, दिल्ली, लाहौर, सासाराम। द करेक्ट ऑप्शन इज द कैपिटल ऑफ शेर शाह सूरी वॉज दिल्ली। ओके, रूल्ड फ्रॉम दिल्ली, नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, Who was the last Governor General of India? Very important. Okay, ये MTS के 2021 का क्वेश्चन है, PYQ है, रिपीट भी हुआ है ये। ओके, रिपीट हो रखा है आपका। ओके, CGL 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, वहाँ से ये रिपीट होके 2021 में MTS में आया। ओके, that who was the last Governor General of India? One and only none other than, ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, Lord Mountbatten, Warren Hastings, Lord Curzon and C. Rajagopalachari. Okay, and the correct option is one and only none other than Rajagopalachari. Yeah, C. Rajagopalachari. Okay, last and only Indian Governor General after independence in 1948. I hope that is totally clear to you. Okay, no any doubt, no any confusion, no any problem. डायरेक्टली बढ़ते हुए गाइस हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? वन एंड ओनली ऑप्शन इज गिवन बाय द वे, लेट्स रीड इट फर्स्ट। 1901, 1921, 1935 and 1947. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज 1921 एंड ये CGL 2018 का क्वेश्चन है। ओके, बाय द वे किसके द्वारा हड़प्पन मतलब फाइंड हुआ था, डिस्कवर हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा। ओके, डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी एट हड़प्पा, पंजाब उस टाइम था। ओके, पंजाब में, नाउ इन पाकिस्तान। ऑलराइट, द ऋग्वेद इज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? पाली, प्राकृत, संस्कृत एंड अर्धामागाधी। ओके, अर्धामागाधी। The correct option is option number C, which is Sanskrit. Oldest Veda composed in Vedic Sanskrit. Okay, CHSL 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है 2025 में। ओके, Who built the Qutbuddin Minar? Okay, I mean Qutbuddin no, Qutub Minar. Who built the Qutub Minar? Qutub Minar किसने बनाया? आप देखो गाइस,
ऑप्शन गिवन है आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। गाइस कुतुब से ही आप रिलेट कर सकते हो आंसर को, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑफ कोर्स उन्होंने ही बनाया होगा, लेकिन उन्होंने बनवाना स्टार्ट करवाया। ओके, बीच में जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई किसी श्राप की वजह से, ओके, समथिंग लाइक अ कर्स, उसके बाद से उनके दामाद ने उसे पूरा करवाया है। उनके दामाद कौन है? सन-इन-लॉ इल्तुतमिश। ओके, स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बट completed by Iltutmish. Okay. Next is the famous painting Bani Thani is associated with which school? Option is given: Pahari, Bundi, Kisangarh, Kangra. So the school name was Kisangarh. Okay. Portrait of Vishnu Pri, symbol of Kisangarh painting. All right. The चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, गाइस चिपको मूवमेंट कहाँ से एसोसिएट हुआ था? ओके, हियर वी हैव ऑप्शन इज आल्सो गिवन: वाटर कंजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड एनिमल प्रोटेक्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन एंड ओनली। ओके, स्टार्टेड इन उत्तराखंड 1973 by hugging trees to prevent cutting. All right, I hope that guys you don't have any doubt yet. Okay. तो जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन विच ईयर? जलियांवाला बाग कौन से ईयर में हुआ था, कौन से डेट को हुआ था, वो आपको स्पेसिफिक लर्न होना चाहिए। ओके, ऑन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके कहने पे हुआ था ये जलियांवाला बाग मैसेकर? बाय जनरल डायर। ओके, इन अमृतसर। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या फिर मरो? ये स्लोगन किसने दिया एंड कब दिया? So during क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, किसने शुरू करवाया? महात्मा गांधी ने शुरू किया था ये क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, 1942 में। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री, देन आप इसे कंज्यूम कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, सो ऑप्शन गाइस हमें गिवन है: महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। बाय द वे ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग है महात्मा गांधी के। ओके, महात्मा गांधी ने कहा था उस टाइम डू और डाई, करो या फिर मरो। हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। अर्थशास्त्र किसने लिखा? ऑप्शन है चाणक्य, कालिदास, पाणिनि, बना भट्ट। ओके, सो अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने। ओके, एंशिएंट इंडियन treatise on statecraft, economics, military strategy. Okay, all right. Now here guys I have some those type of questions जिनके लिए हमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, उसे हमें अपने माइंड में फिक्स करना होगा, जो ये इम्पोर्टेंट भी है। ओके, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought in 1526 as we all know between बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ओके, अब गाइज देखो, गाइज यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है। अगर यहाँ पर बैटल की बात हो रही है, क्या लगता है कितने बैटल हुए होंगे? ओके, कितने बैटल्स हुए होंगे? अगर मैं कहूँ, अगर गाइज मैं कहूँ कि पानीपत की जो लड़ाई हुई, जो बैटल ऑफ पानीपत है, ओके, फर्स्ट बैटल गाइज जैसे कि हम सभी जानते हैं 1526 में हुआ था। ओके, किस किस के बीच हुआ भाई, ये बताओ। आखिर फर्स्ट जो बैटल हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स नो एनी प्रॉब्लम, होनी भी नहीं चाहिए वैसे कोई दिक्कत। 1526 में हुआ था। ओके, कहाँ पर हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था? पानीपत हरियाणा। ओके, तो शायद हुआ था 21 अप्रैल को हुआ था 1526। खैर डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ईयर से काम बन जाएगा, लेकिन डेट भी इम्पोर्टेंट है। क्या पता कहीं एग्जाम में आ जाए। ओके, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, सो हो सकता है कि एसएससी का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी एआई के थ्रू ही बनाया गया हो, क्या पता। ओके, सो 21 अप्रैल 1526 पानीपत हरियाणा। ओके, बाबर और इब्राहिम लोदी। गाइस देखो, बाबर हमने सुन लिया, इब्राहिम लोदी सुन लिया। क्या ये नहीं जानना चाहोगे कि ये कौन है? बाबर कौन है, कहाँ से आया, किसका नाम है, इंसान है, जानवर है, कौन है भाई, है कौन आखिर ये? सो
Babur Mughal, okay, Babur from Mughal and Ibrahim Lodi from Delhi Sultanate, okay. So the main point is this, क्या cause थे? So Babur desire to expand into India, weakness of Lodi rule and Afghan nobles dissatisfaction, okay. So guys, यहाँ पर कुछ सोल्जर्स के बारे में भी गिवन है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. सो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड इब्राहिम लोदी की डेथ हो गई थी, ओके, लोदी किल्ड एंड एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर. मतलब कि इन इंडिया बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर इंडिया में मुगल एम्पायर को क्रिएट किया, ओके, बनाया. सेकेंड बैटल गाइस हुआ था, सेकेंड बैटल हुआ था आपका पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था, ओके. 5 नवंबर 1556. जगह सेम थी, बस कारण कॉजेज रीजन अलग थे, ओके. पानीपत एंड हरियाणा वही सेम प्लेस. अब गाइस किसके बीच में हुआ, चलिए आइए देखते हैं. अब गाइस हुआ था अकबर और बाईराम खान वर्सेस हेमू. हेमू कौन है? हेमू विक्रमादित्य हैं, ओके. सो आफ्टर हुमायूं डेथ अकबर बिकेम एम्पायर, ओके. हुमायूं की डेथ के बाद से अकबर ने अपने एम्पायर साथ किया वहाँ पे 13 ईयर्स तक, ओके. 13 सालों तक उन्होंने वहाँ पर राज किया, ऑलराइट. नाउ सो गाइस यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई थी सेकेंड बैटल, ओके. सेकेंड बैटल जब एंड हुआ, सो थर्ड बैटल गाइस, थर्ड बैटल काफ़ी टाइम के बाद हुआ, ओके. फर्स्ट हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में. सेकेंड बैटल हुआ आपका 1556 में किसके बीच में? अकबर और बीरबल. नहीं है अकबर बीरबल मत करें यहाँ पे, ओके. अकबर बीरबल वो इतने सच्चे दोस्त थे कि उनके बीच में कभी कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती, ओके. अकबर बीरबल नहीं, अकबर और हेमू हुमायूं के बीच में, ओके. थर्ड बैटल गाइस हेमू विक्रमादित्य. थर्ड बैटल आपका हुआ था 1761 में, 14 जनवरी 1761. जगह वही, प्लेस पानीपत हरियाणा, ओके. किसके बीच में हुआ था गाइस? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव के बीच में हुआ था. क्या बात है, वह क्या नाम है, क्या नाम है? अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी एम्पायर अफगानिस्तान फ्रॉम, ओके, वर्सेस मराठाज लीड बाई सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव. वो उन्हें लीड कर रहे थे, उनके बीच में हुआ था ये, ओके, फाइट, ऑलराइट. सो दैट इज ऑल अबाउट इट. फाइट में गाइस क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता? सो द मेन पॉइंट इज अब्दाली इन्वेडेड इंडिया टू resert influence after the weakening of the Mughal Empire, okay. So विश्वास राव, ऑलराइट, विश्वास राव पेशवा सन, उनकी डेथ हो गई, ओके. वॉज किल्ड इन द बैटल एंड द फर्स्ट अब्दाली की जीत हुई, ओके. सो दैट इज ऑल गाइस अबाउट. इसका एक बार हम शॉर्टकट समरी देख लेते हैं. फर्स्ट पानीपत में हुआ था. वैसे गाइस क्या क्या यूज हुआ था उस युद्ध में, ओके. जो फाइट हुआ ना बैटल में, उसमें क्या क्या यूज हुआ? सो फर्स्ट जो पानीपत का जो बैटल हुआ था 1526 में, उसमें गन पाउडर का यूज़ किया था बाबर ने, ओके. बाबर ने एक बहुत ही चालाकी दिखाई, उसने गन पाउडर का यूज़ किया अपने अपोजिशन पार्टी को हराने के लिए. मैं भी पॉलिटिक्स में आ गई, ओके. नेक्स्ट सेकेंड पानीपत, ओके. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि आपका हुआ था 1556 में, ओके. आफ्टर 30 सालों के बाद आपका हुआ था 1556 में. हेमू और अब्दाली में हुआ था. सो इन्होंने ऐसा कोई खास यूज़ नहीं किया था. एंड थर्ड आप जानते ही हो किसके बीच में हुआ था. दैट इज ऑल अबाउट. लार्जेस्ट 18th सेंचुरी का बैटल था वैसे ये, ओके. हैवी कॉजल्टीज हुई थी, वीकिंग ऑफ मराठास की वजह से वो लोग हार गए थे, ओके. दैट्स ऑल गाइज अबाउट इट. दुर्रानी एम्पायर जीत गया था. अब गाइज हम वापस आ जाते हैं अपने 100 MCQ वाले फॉर्मूले पे, ओके. हम अपने राह से भटक गए थे पर हम वापस आ गए. सो यहाँ से गाइज ये हो गया हमारा पानीपत के बारे में. हमने फुल डिटेल में जानकारी ले ली. फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ. अब अगर एग्जाम में फर्स्ट की जगह थर्ड का डेट पूछे या फिर ये पूछे किस किस के बीच में हुआ था, या फिर ये आ जाए सेकंड वाला कैसे हुआ था, या फिर
फर्स्ट में बाबर ने किस पाउडर का यूज किया था? ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट गन पाउडर। ओके, सो क्या आप क्वेश्चन को सही टिक मार्क लगा दोगे? ओके, ऑफ कोर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंटिंग इन योर स्क्रीन वाज इन प्रैक्टिस, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? Who was the founder of Sikhism? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL 2017 में आ चुका है। ओके, गुरु नानक देव जी। ऑलराइट, द करेक्ट ऑप्शन इज गुरु नानक देव जी। ओके, नाउ द इंडिका वॉज रिटन बाय, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? सो गाइस वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। ओके, मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा है। द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज वॉज, आर्य समाज को किसने फाउंड किया था? ऑफ कोर्स स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था फाउंड। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को फाउंड किया था। ओके, फाउंडर ऑफ आर्य समाज ने कहा गया है। द खिलाफत मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द ऑटोमन caliphate। ऑलराइट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? वेरी क्रूशियल क्वेश्चन गाइस, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, बन चुका है, क्योंकि मैं खुद बनाकर आई हूँ क्वेश्चन पेपर। ओके, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 1885। गाइज मैं पूरे ऑप्शन नहीं बोलूँगी। ओके, बिकॉज 100 MCQ करने हैं, हमें टाइम निकल जाएगा, प्लस बैकग्राउंड भी डिस्कस करना है। क्या चाहते हो, 3-4 घंटे की वीडियो हो तो देखिए बच्चा देख के टाइमिंग देख के भाग जाए? नहीं ना, कंप्लीट करना है हमें, जल्दी कर लेंगे, हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। ओके, if I am here then no one is here. The Indian National Congress was formed in which year? Of course 1885. Okay, the capital of Pallavas was in Kanchipuram. Okay, the Gateway of India is located in, guys, Gateway of India बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि मुंबई में है। ओके, आई होप कि बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों का सपना होगा देखने का, जिनमें से एक मैं भी हूँ। Who was the first president of INC? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। ओके, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? ऑफ कोर्स 1920 में हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट। ओके, दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1930 में स्टार्ट हुआ था, भाई महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ओके, किस लिए, क्यों शुरू किया भाई? कोई तो कारण रहा होगा ना, या बस ऐवे भाई हम मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं? बहुत बड़ा रीजन क्या है भाई? फॉर सॉल्ट सत्याग्रह। ओके, नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ चोलास वॉज तंजोर थांजावुर। ओके, चोलास, जैसे चोलास नाम है ना वैसे तंजोर है। गाइस देखो, कनेक्शंस बनाना सीखो। ओके, क्वेश्चन से आंसर को रिलेट करो, उसको रिलेट, जब आप एक रिलेशन कंज्यूम करोगे ना, सो वो रिलेशन आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, रिलेशन बनाओ, एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। वैसे मैंने मैथमेटिक्स में मैंने एक वीडियो बनाई है। ओके, जहाँ पर मैंने रिलेशंस दिखाए हैं। इनफैक्ट हमने इसमें रिलेट किया है बहुत सारी चीज़ों को। रिलेट क्या क्या किया है वो देख लेते हैं एक बार के लिए। रिलेट्स हमने ये किया है, जो जो चीज़ें वहाँ पे रेशियो के फॉर्म में गिवन है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में। अब आप कहोगे मैं यहाँ से डायरेक्टली वहाँ आ गई, सो नॉट अ बिग डील। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें गिवन है, लाइक रेशियोज विच वॉज वेरी क्रूशियल। ओके, सेम, बट अभी भी वो क्रूशियल ही है, लेकिन यह उसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैंने उसमें प्रोवाइड की है। यू कैन डायरेक्टली लर्न द ट्रिक फ्रॉम माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसकी प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि मैथ की भी क्लासेस जल्दी होने वाले हैं। इसके बाद एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, 2 मंथ बचा है, डेट आ गया एग्ज़ाम का, सो हमें थोड़ा फास्ट काम करना होगा। ओके, आखिरी के 2 महीने में हमने जब ये जिम्मेदारी ले ली है कि हमें निकालना है, मतलब निकालना ही है। सो द फेमस भीमबेटका caves are in which state? भीमबेटका in मध्य प्रदेश। ओके, MP। Who founded the ब्राह्मो समाज? ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया? राजा राम मोहन रॉय। गाइस कुछ टाइम पहले हमने एक और समाज की बात की थी, आर्य समाज। ओके, किसने फाउंड किया था?
सरस्वती दयानंद, ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा क्वेश्चन में, नहीं तो ब्रह्म समाज के बारे में आएगा, नहीं तो फिर आर्य समाज के बारे में आएगा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ओके। दोनों समाज के बारे में एक साथ नहीं पूछेगा, लेकिन एक आएगा, ये फिक्स है। हु स्टार्टेड दिन आई अलाही, दिन आई अलाही किसने स्टार्ट किया था? गाइस नाम सुन के क्या लग रहा है, ये इतना वियर्ड नेम कौन रख सकता है? ऑफ कोर्स अकबर रख सकता है, ओके। अकबर के अलावा कोई और है नहीं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में उसने विन भी किया था, जीता था ना, उसने हराया था हेमू को। सो अकबर ने ही ये नाम रखा था, ओके। इसे साथ किया था दिन आई अलाही को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? ऑफ कोर्स 1942 में हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। क्यों किया था इसका रीजन मत पूछना, ओके, बहुत ही लेंदी है, डिटेल टॉपिक है, लेकिन इसका आंसर मैं दूंगी कि आखिर क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ था। ये हम फैक्ट में बात करेंगे, फैक्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं होते। मेन पॉइंट ये है कब हुआ था, किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। उनका एक फेमस डायलॉग है, जैसे कि मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, डू और डाई। ये क्वेश्चन आएगा कि उनका फेमस डायलॉग जो है वो किसका है। इसमें आपको ये कोई रिलेशन नहीं देगा कि हाँ ये फेमस डायलॉग कब बोला गया था, किस ईयर में बोला गया था, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। बस आपको डायलॉग दे देगा और ये पूछेगा डू और डाई किसने कहा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? 1942 में कहा था। क्यों कहा था और किस चीज़ में कहा था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में उन्होंने ये चीज़ कहा था, ओके। अब ये मत पूछना कि स्टार्ट कैसे हुआ, कब हुआ, इसका क्या रीज़न है, वो डिटेल हो जाएगा बैकग्राउंड, और इसमें वो पूरा कंज्यूम नहीं हो पाएगा। सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंज्यूम करेंगे। दैट द स्टार्टिंग बिहाइंड क्विट इंडिया मूवमेंट, कब स्टार्ट हुआ, कैसे उसका एंड हुआ, क्या उसका रीज़न था, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो, मीन्स फैक्ट वीडियो, ओके। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1942, जैसे कि मैंने बताया अभी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही नॉर्मल है, ओके। द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड इन, वी ऑल नो, ओडिशा, ओके। कोणार्क वहाँ पर फेमस सन टेम्पल लोकेटेड है, ओके। नाउ गाइस द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट, द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, ओके। उन्होंने रेड फोर्ट को बनाया था। एंड वन मोर थिंग गाइस, ताजमहल फिर किसने बनाया? Of course the same one, okay. Now who was the last founder of Mughal Empire, okay? Last founder of Mughal Empire कौन है? बहादुर शाह जफर टू, ओके। सेकेंड बहादुर शाह जफर, ओके। गाइज ये आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर मुगल एम्पायर हो, चाहे गुप्ता एम्पायर हो, चाहे चोला एम्पायर हो, चोला डायनेस्टी है, ओके, चाहे वो मौर्य एम्पायर हो, तीनों की स्टार्टिंग पूछ रहा है, मतलब कि उनके फाउंडर कौन है, उनके फर्स्ट रूलर कौन थे, ओके। फाउंडर कौन थे, किसने फाउंड किया, कौन उसके फर्स्ट रूलर है, और उनके लास्ट रूलर कौन है, ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर आएगी। सो 6 चीज़ें हैं आपको याद करनी है, मुगल एम्पायर की फर्स्ट लास्ट, मौर्य एम्पायर की फर्स्ट एंड लास्ट, एंड वन मोर आई एम टॉकिंग अबाउट, इतने ही एम्पायर है, राइट? नो, वन मोर, ओके। चोला डायनेस्टी का भी ऐसा ही है, फर्स्ट आपको एंड लास्ट आपको लर्न रखना है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, ओके। अराउंड 13 मिनट 40 सेकेंड्स के अराउंड मैंने आपको बताया था उस टाइम पे। एक बार दोबारा रिविजन कर लेते हैं बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। नंबर 1 बैटल कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और किसके बीच में हुआ था? बाबर और, वैसे बाबर कहाँ से थे? बाबर मुगल से थे, ओके। और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी कहाँ से थे? दिल्ली सल्तनत, ओके। बाबर ने ये लड़ाई क्यों की थी? क्योंकि वो इब्राहिम लोदी को हरा के इंडिया पे मुगल एम्पायर का राज्य चलाना चाहते थे एक तरह से, ओके। उसे एक मुगल एम्पायर का फुल अपना स्प्रीड करना चाहते थे, ओके, बूस्ट करना चाहते थे अपने एम्पायर को इंडिया में। किस चीज़ का यूज़ किया था उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए? गन पाउडर का यूज़ किया था, ओके। 1526 में हुआ था। दैट्स ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट बैटल आपका सेकेंड बैटल कब हुआ था? वो हुआ था 1556 में। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर के बीच में हुआ था और एक हमारे हेमू, ऑलराइट, उनके बीच में हुआ था। और नेक्स्ट गाइस आपका हुआ था 17
या 1726 में हुआ था, ओके, अराउंड 2 years ऑलमोस्ट, ओके, वी कांट से 2 years, इनफैक्ट 2 century के बाद, यानी कि ये अराउंड 18th century का बैटल है, ओके। यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अराउंड 18th century में हुआ था, ओके। सो ये मत पूछना कि सेंचुरी क्या होती है, वो ABCD कैसे होती है, BC AC क्या होता है, उन सब के लिए अगर आपको जानना है सो वो आप डायरेक्टली AI से पूछ सकते हो, ओके, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट नाउ AI इज़ हेयर, ओके। एंड ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि ये क्या होती है, ACCD क्या होते हैं, ट्रायंगल्स नहीं है, ट्रायंगल की साइड नहीं है ये। दीज आर कॉल्ड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डेट, ओके, और वी कैन से ईयर, सेंचुरी ऑल्सो। बाय द वे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था, ओके, और किस बीच में स्टार्ट हुआ था? सो ड्यूरिंग बंगाल का पार्टीशन हो रहा था उस टाइम, ओके, बंगाल का पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पे 1905 में, ओके, उस टाइम ये स्टार्ट हुआ था। सो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, जो कि आपके सामने आया भी है क्वेश्चन 1905 में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, ओके, बंगाल के पार्टीशन के टाइम में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो उसका नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है। स्वदेशी नाम था, 1905 में हुआ था, दैट्स ऑल अबाउट इट। नाउ हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया? सी रूट टू इंडिया किसने डिस्कवर किया था? वास्को दा गामा, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत ही नाम इनका जो बहुत है फेमस है, वी कैन से, ओके, वेरी क्रूशियल क्वेश्चन ऑल्सो। वास्को दा गामा in 1948. Year is not very much important, but the name very important, okay. The first Governor General of India कौन थे हमारे? वॉरेन हेस्टिंग्स, okay, वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Now that's all about guys. The capital of British India was shifted from Calcutta to Delhi in 1911. इस टाइम शिफ्ट हुआ था, okay. Famous poet Kalidas lived in which court? Chandragupta II, okay. The Vijayanagar Empire was founded in 1336 by Harihara and Bukka, okay. विजयनगर एम्पायर किसके द्वारा फाउंड हुआ था? हारीहारा और बुक्का के द्वारा। कब हुआ था? 1336 में हुआ था, अराउंड 14th century, ओके। बैटल ऑफ बक्सर, वेरी मच इम्पोर्टेंट, ओके। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में हुआ था, 18th century, यानी कि पानीपत के बैटल के बाद हुआ था ये बैटल ऑफ बक्सर, ओके। रीजन सिमिलरिटीज कुछ है इसमें, अगर आप चाहो तो सर्च कर सकते हो कि बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर में क्या सिमिलरिटीज है, बिकॉज सेम सेंचुरी में हुआ है, जो सिमिलरिटीज तो बनती है यार, ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डैश एज सिविलाइजेशन, मतलब कि ये एक इंडिपेंडेंट टाइप क्वेश्चन है, सो ये ब्रॉन्ज एज में फाउंड हुआ था, ओके, इंडस वैली, ऑलराइट। फेमस अजंता केव्स आर इन विच स्टेट? अजंता केव्स गाइस महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, और गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में ही है, ओके। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत है, सो ये मुंबई में है, दोनों खूबसूरत जगह, ऑलराइट। हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, ओके, कि वो परमानेंट सेटलमेंट करेंगे कहाँ पर? बंगाल में, ऑलराइट। उस टाइम ब्रिटिश का शासन था, ओके, ब्रिटिशर्स थे, ये भी उन्हीं में से एक हैं। हु रोट गीत गोविंद? गीत गोविंद किसने लिखा है? सो गाइस ये जया देवा ने लिखा है, ऑलराइट, गीत गोविंद, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। सो गाइस क्या लगता है कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हमारे कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? क्या लगता है? डू यू हैव एनी आइडिया कि अभी हमने कितने क्वेश्चन डिस्क्राइब किया है? डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस? ओके, if you have any idea, so that's very much amazing and interesting, but the main point is this, if you have no any idea कि हम अभी तक कौन से क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, कितने क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया और कितने क्वेश्चंस अभी आपके बाकी रह गए हैं, in short you are not listening me very carefully, okay. so guys अभी मैं लेना चाहूँगी 1 मिनट का ब्रेक, आपके लिए भी अपने लिए भी, बिकॉज हमने अपने पूरे कर लिए हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, ओके, यानी कि हाफ कंप्लीट हो चुका है, हाफ अभी और रह रहा है, ओके। पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर सकते हैं। 50
क्वेश्चंस हो चुके हैं, 50 क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है। सो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं दोबारा अपने रिमेनिंग के 50 क्वेश्चंस को, जो कि है स्टैटिक जीके को इन्वॉल्व करके। ओके, हिस्ट्री प्लस स्टैटिक जीके। ऑलराइट, नाउ Sunday स्पेशल वीडियो, सो वेट फॉर 1 मिनट। यू कैन गो एंड हैव ड्रिंक व्हाटएवर यू वांट। ओके सो गाइस, ब्रेक हो चुका है कंप्लीट और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैंने वीडियो को पॉज किया था, इफ यू डोंट माइंड, आई होप नो एनी प्रॉब्लम। ओके, वीडियो हो चुका है दोबारा से स्टार्ट एंड अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 के बीच में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, डायरेक्टली लेट्स बिगिन टू आवर वीडियो एंड लेट्स लर्न द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ 51। ओके, which Indian freedom fighter was called लोकमान्य। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकमान्य कौन से फ्रीडम फाइटर को कहा गया है? ओके, ऑप्शन गिवन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक। क्या लग रहा है गाइस, मैंने बाल गंगाधर तिलक में इतनी एजर्सन के साथ मैंने क्यों बोला? मतलब कि इतना फ्लो में मैं इनका जब नाम ले रही हूँ, स्लोली स्लो मोशन में, मीन्स कुछ तो बात है इनके नाम में। ऑफ कोर्स हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज बाल गंगाधर तिलक। ओके, ये CHSL 2017 का क्वेश्चन है, इस बार भी आपके एग्जाम में ऑफ कोर्स आएगा। 100% इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। वैसे क्या कहा था उन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट। ओके, स्वराज उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है उनका, एंड आई शैल हैव इट। ओके, वो उसे पूरा करेंगे एंड दैट इज हाउ उन्हें इसी डायलॉग की वजह से उनके इस फ्रीडम, उनके सेक्रीफाइस एज अ फाइटर उन्हें लोकमान्य कहा गया है। ओके, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who introduced the subsidiary alliance system in India? किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन गिवन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन एंड वॉरेन हेस्टिंग्स। देखो गाइस, उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये सोचते हैं कि आंसर के ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, हमारे पास 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में के स्टार्टिंग में लॉर्ड 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 गिवन है। चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा वो यूनिक लग रहा है, अनोखा, अलग सा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, इवन लग रहा है। ओके, आई मीन वी कैन से ऑड लग रहा है। ये तीनों तो इवन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन चौथा वाला जो है ना वॉरेन हेस्टिंग्स नाम, वो ऑड लग रहा है। सो 20% पॉसिबिलिटी ये कहती है कि उन बच्चों के हिसाब से तो 50% ही वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये ऑड वाला ही आंसर हो, लेकिन 50% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि ये कहते हैं कि नहीं यार, 3 में लॉर्ड है, मतलब इन्हीं में से कोई एक होगा, तभी तो यहाँ पे लॉर्ड 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 डैश करके आगे उनका सरनेम लिखा हुआ है। हो सकता है इन्हीं में से कोई एक हो। सो ये तुक्का नहीं लगाना है। जहाँ तक मैं बता दूँ आपको, MTS में आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लगाओ, बिल्कुल फ्री हो। लेकिन CHSL में अगर आप लगाओगे तो 0.50 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और वो नंबर पता है कहाँ से कटेगा? जो क्वेश्चन आपने सही किया होगा ना, उसमें से कट जाएगा वो नंबर। ओके, अराउंड 1 मार्क्स वी कैन से। यानी कि अगर आपने 2 नंबर के क्वेश्चन को सही भी किया है, 2 नंबर आपके बनते भी हैं, उसमें से भी आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्यों? आपकी इस बेवकूफ़ी की वजह से। ओके, तो जो क्वेश्चन नहीं है उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। ऑलराइट, वैसे कोशिश यही करो कि क्वेश्चन स्किप करने की ज़रूरत ना पड़े, वरना यहाँ आप क्वेश्चन स्किप करोगे और वहाँ आपका सिलेक्शन में से एक नाम आपका 1 स्टेप नीचे आ जाएगा, और आपका नाम जितना नीचे आते जाएगा, जितने क्वेश्चन को आप स्किप करोगे ना, आपका नाम भी उतना ही नीचे आते जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट के बाहर ही हो जाए आपका नाम, लिस्ट में जगह ही ना बचे आपके नाम को लिखने की। ऐसा नहीं करना। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑलराइट, नाउ टू कंट्रोल इंडियन स्टेट विदाउट डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ओके, नेक्स्ट गाइस, द एंशियंट पोर्ट लोथल वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरात। ओके, तो गुजरात में लोकेटेड है लोथल। ओके, वैसे लोथल फेमस क्यों है? अपने डॉकयार्ड की वजह से फेमस है। ओके, नाउ द बैटल ऑफ हल्दी घाटी was fought between Akbar and
महाराणा प्रताप। सो गाइस, जिन जिन बच्चों ने महाराणा प्रताप देखा है, ये शो बहुत ही कमाल का शो है, आपको जरूर देखना चाहिए। आप उन बच्चों को इस आंसर को देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अकबर के साथ हल्दी घाटी पे महाराणा प्रताप की ही फाइट हुई थी। ओके, हल्दी घाटी अब ये कौन सी जगह है, ये जब आप वो शो देखोगे आपको पता चल जाएगा। बहुत ही कमाल का शो है। उस शो जो बच्चों ने देख लिया उसमें से उनका एक क्वेश्चन बन गया। ओके, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फाउट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। वैसे क्यों हुई थी ये हल्दी घाटी पे उनकी फाइट? उनका जो बैटल हुआ था क्यों हुआ था? फूल कुंवर की वजह से हुआ था। ओके, फूल कुंवर जो कि इनकी वाइफ है महाराणा प्रताप की। ओके, उनकी वजह से ये सेकंड वाइफ, वैसे फर्स्ट आपकी वो थी, नाम याद नहीं आ रहा उनका। ओके, सेकंड वाइफ थी हमारी फूल। ओके, फर्स्ट थी अजब दे एंड सेकंड वाज फूल। सो फूल कुंवर की वजह से ये फाइट हुआ था हल्दी घाटी पे। ओके, वो लोग घूमने निकले थे एंड दैट इज वाई ये फाइट आपका हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप। बाकी शो देखोगे पता लग जाएगा क्यों हुआ था। ओके, सो क्या लगता है कौन जीता होगा? अकबर फोर्स लीड बाय मान सिंह एंड डिफीटेड प्रताप। ओके, 1576 में ये हुआ था फाइट आपका। क्या बात है, 1526 में तो बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था, उसके बाद से ये बैटल ऑफ हल्दी घाट भी हो गया। क्या बात है, वेरी गुड, नॉट बैड। नाउ हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? ओके, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, वन एंड ओनली, नन अदर देन रजिया सुल्ताना। वैसे इनके ऊपर भी एक शो बना है, चाहो तो देख सकते हो, बहुत ही कमाल का शो है। रजिया सुल्ताना ऐसे करके उनकी जो शो की कहते हैं ना टाइटल की BGM, वो है, बहुत ही अच्छा शो है। जियो हॉटस्टार ऐप पे अवेलेबल है और नेटफ्लिक्स पे भी आ रहा है आजकल इस टाइप का शो, अगर आप चाहो तो देख सकते होगे। रूल दिल्ली सल्तनत में इन्होंने 4 साल तक रूल किया था। वैसे ऑप्शन में और भी नाम गिवन है, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, नूरजहां, मुमताज महल। ओके, खैर मुमताज की याद में तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, सो मुमताज महल तो इम्पॉसिबल है होना। एंड रूल्ड दिल्ली सल्तनत, उन्होंने 4 साल तक रूल किया। रजिया सुल्तान, दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, नाउ हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? उस टाइम 1905, जैसे कि मैंने कहा था। वैसे क्यों हुआ था ये पार्टीशन? डन टू ब्रेक हिंदू और मुस्लिम यूनिटी, उनकी यूनिटी को तोड़ने की वजह से ये पार्टीशन हुआ था। ओके, 1905 में। नाउ लॉर्ड कर्जन वाज द करेक्ट आंसर। ओके, वो उस टाइम बंगाल के वाइसरॉय थे, जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रिटिश उस टाइम भी थी, सो इस वजह से ये फाइट हुआ था एंड ये पार्टीशन हुआ था। और उसी टाइम 1905 में लॉर्ड कर्जन वहाँ के वाइसरॉय थे। ओके, उन्हीं के आदेश पे ये सब हुआ था। नाउ नेक्स्ट वन इज साइमन कमीशन कब हुआ था? कौन से ईयर में साइमन कमीशन आया था? 1927 में आया था। ओके, नो इंडियन मेंबर, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर ने अपनी हामी लीव टू प्रोटेस्ट नहीं किया था। ओके, साइमन कमीशन आया गया, कुछ नहीं हुआ उससे फायदा, बस 1927 में आया, ये चीज़ याद रखना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। द फेमस पेंटिंग भारत माता, किसने बनाया है भारत माता की पेंटिंग को? अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। ओके, यहाँ पर ऑप्शंस भी गिवन है, नंदालाल बोस, राजा रावी वर्मा, जामिनी रॉय, अवनिंद्र। ओके, द नेम वाज अवनिंद्रनाथ टैगोर। ओके, द स्पेलिंग इज ऑल्सो अवनिंद्रनाथ टैगोर। बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। ओके, जो भारत माता की जो पेंटिंग है वो एक सिंबल है नेशनलिज्म, जो हमें दिखाती है। ओके, शो करती है। नाउ विच सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? ओके, सो ये बहुत ही फेमस सुल्तान रह चुके हैं जिन्होंने अपनी चालाकी दिखाई, चालाकी नहीं इसे बेवकूफ़ी कहेंगे। ओके, जिन्होंने दिल्ली से डायरेक्टली अपनी पूरी सल्तनत को लेके ये पहले तो गए दौलताबाद। ओके, कि वहाँ जाके हम शिफ्ट होंगे, लेकिन वहाँ पहुँचे जब उन्होंने वहाँ की हालत देखी, जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे शिफ्ट होना कितना मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इतना ज़्यादा टर्बुलेंस वहाँ पे बढ़ गया था, उन्हें वापस आना पड़ा दिल्ली। अब इनके जाने में इनके आने में इनके इतने पैसे खर्च हो गए, इन्हें कुछ पता भी नहीं चला, ये पूरे एक तरह से बर्बाद हो चुके थे। ओके, फुल डिस्ट्रॉय।
और ये महान शख्स का नाम है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वन एंड ओनली, नन अदर देन, ऑप्शन भी वैसे गिवन है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बालबन, लेकिन नहीं, उन महान शख्स का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इन 1327 अराउंड 14th century टू कंट्रोल डेक्कन बेटर, उन्होंने ये महान काम किया। ओके, जिससे का कोई फायदा भी नहीं निकला, जितने प्रेम से गए उतने ही प्रेम से वापस भी आ गए। बस ये उन्होंने काम किया, अपने सारे पैसे खर्च कर दिए जाने में आने में। सोचे थे कि हम जाएंगे अपना राजमहल बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वापस उन्हें वही आना पड़ा। ओके, जहाँ से गए थे। सो इसी की वजह से वैसे वो हारे भी थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, सरोजनी नायडू। ओके, जो कि वहाँ की फर्स्ट प्रेसिडेंट 1925 के अराउंड बनी थी। वो कानपुर में उनका पहला सेशन हुआ था। ओके, INC में। दैट्स ऑल अबाउट इट। टाइटल ऑफ महात्मा वाज गिवन बाय टू गांधी बाय, ओके, महात्मा गांधी जो नाम है सो उन्हें महात्मा का टाइटल क्यों दिया, उन्हें महात्मा क्यों कहते हैं गांधी जी को, और किसने उन्हें ये टाइटल दिया कि हम गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से बुलाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके, यस। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? INC, सरोजनी नायडू वही है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है यार? अभी तो बताया है, मुंबई में है। कितने बार पूछते हो एक ही चीज। कैपिटल ऑफ द पांड्या किंगडम वाज मदुरई, पांड्या किंगडम का कैपिटल मदुरई में था। ओके, द फेमस सारनाथ लॉयन कैपिटल वाज बिल्ड बाय विच एम्पायर? अशोका ने बनवाया था सारनाथ लॉयन कैपिटल। ओके, अशोका, बाय अशोका। The Moplah rebellion was related to which region? One and only, none other than Kerala. Who was the first Muslim ruler to conquer Bengal? Bakhtiyar Khilji. Bakhtiyar Khilji, first Muslim ruler to conquer Bengal. Okay, Bakhtiyar Khilji. Founder of Chola dynasty, one and only, none other than Vijayalaya Chola. Okay, Vijayalaya Chola, not Chola. Who introduced the doctrine of lapse? किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डेलहाउस। ओके, D for doctrine, D for डेलहाउस। जी याद रखना। कनेक्शन देखो मैंने क्या रिलेशन बनाया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ओके, 1726 में, 1761 में हुआ था। ओके, द फेमस पीकॉक थ्रोन वॉज बिल्ड बाई शाहजहां। ओके, शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन बनाया था, जो कि बहुत ही फेमस है। Who was the founder of slave dynasty? Qutbuddin Aibak. Okay, Gulami dynasty. Now, who was the founder of Rashtrakuta dynasty? Danti Durga. The Badrinath temple is located in which state? उत्तराखंड। ओके, बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में लोकेटेड है, बहुत ही प्यारा है, जरूर देखना चाहिए। मैंने भी देखा है सपने में, नहीं यार देखना है। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम टाइबेट लेक मानसरोवर। क्या बात है, मानसरोवर में तो मैं रहती हूँ। द सिवास मुदरम वाटरफॉल्स आर ऑन विच रिवर? कावेरी। ओके, कावेरी नाम की एक मेहंदी भी है, वहीं से बनती है। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कंपोज किया नेशनल सॉन्ग हमारा इंडिया का, वंदे मातरम? द करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने इसे कंपोज किया था। ऑलराइट। द ब्लू वाटर पॉलिसी इज रिलेटेड टू विच कॉलोनियल पावर? वन एंड ओनली, नन अदर देन पोर्टुगीज। लोथल डॉकयार्ड एसोसिएटेड किससे है भाई? अभी तो मैंने बताया, लोथल का डॉकयार्ड बहुत फेमस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड। ओके, बहुत ही फेमस है ऐसे। द फेमस कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय, देखो गाइस आएगा आखिर क्वेश्चन, इसी में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं कंफ्यूज। कुतुब मीनार स्टार्ट तो करवाया इनके
फादर इन लॉ ने, ओके, यानी कि इल्तुतमिश के फादर इन लॉ कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया? उनके दामाद ने, सन इन लॉ, कौन? इल्तुतमिश, ओके, उनके द्वारा इसे कंप्लीट किया गया। सो क्वेश्चन में अगर ये आ रहा है कि किसने बनवाया, क्योंकि देखो उसमें ये नहीं आपको पूछेगा कि भाई किसने स्टार्टिंग किया, किसने कंप्लीट किया। देखो भाई कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कहा था बनवाने को। सो ऑब्वियसली सी बात है उन्होंने ही सब कुछ हैंडल किया। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया, फाउंडर ऑफ कुतुब मीनार कह सकते हैं, ओके, फाउंडर ऑफ कुतुब मीनार किसने बनवाया आखिर कुतुब मीनार। सो आपको इल्तुतमिश का नाम नहीं देना, ओके, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कंप्लीट करवाया था। उनके फादर इन लॉ का जो बचा हुआ जो काम था वो बस उन्हें कंप्लीट उन्होंने करवाया। लेकिन स्टार्टिंग किसने की, आइडिया किसने दिया कुतुब मीनार का? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। सो करेक्ट आंसर भी उन्हीं का होगा, नाम भी उन्हीं का होगा, ओके। आपको ऑप्शन में इल्तुतमिश भी दिया होगा, लेकिन बच्चे आधे उस पर करेंगे तो वो हार जाएंगे, मतलब फेल हो जाएंगे एग्जाम में, सिलेक्शन से हट जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुतुबुद्दीन ऐबक पे किया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ओके, दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर ये आ रहा है कि किसने कंप्लीट किया, उस टाइम आप इल्तुतमिश का नाम दोगे, लेकिन किसने स्टार्ट करवाया, किसने बनवाया, किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ओके, इनके फादर इन लॉ ने। कभी कभी रिलेशन पूछता है कौन है इल्तुतमिश, बता सकते हो? सन इन लॉ, फादर इन लॉ, क्या कनेक्शन है, ओके, दोनों में। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ओल्डेस्ट, बहुत ही पुराना, सबसे पुराना कौन है माउंटेन रेंज इंडिया का? अरावली रेंज है, ओके, अरावली। अजंता केव्स कहाँ पे लोकेटेड है? अभी मैंने बताया अजंता केव्स और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों ही मुंबई महाराष्ट्र में है। बहुत ही खूबसूरत है, जरूर देखना चाहिए, ओके। हड़प्पन सिटी, ओके, डॉकयार्ड के लिए कौन सा सिटी हड़प्पन का फेमस है? लोथल फेमस है, ओके। खजुराहो टेम्पल कहाँ पर बिल्ड हुआ, ओके, कौन सी डायनेस्टी में? सोचंदेला डायनेस्टी, ओके। कैपिटल ऑफ मगध अंडर बिंबिसार वॉज राजगीर। भक्ति सेंट कबीर वॉज disciple of Ramananda, okay, and the famous Ellora caves are in which state? देखो गाइस, अजंता केव हो चाहे एलोरा केव हो, दोनों ही महाराष्ट्र में है और बहुत ही खूबसूरत है। इनफैक्ट गेटवे ऑफ इंडिया भी महाराष्ट्र में है, मुंबई में है और बहुत ही खूबसूरत है, ओके, हमें जरूर देखना चाहिए, यू शुड विजिट, ओके। दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है? वो है माउंट आबू, राजस्थान में, ओके। दिलवारा टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल है, वहाँ पे टूरिज्म भी आते हैं, ओके। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? अभी तो बताया मैंने, बाबर ने फाउंड किया था, ओके। नाउ अलाई दरवाजा, ओके, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ए फॉर अलाई, ए फॉर अलाउद्दीन, ओके। कनेक्शन बनाओ, याद करो, आंसर आया, ऑप्शन आया, टिक मार्क लगा के आ जाओ करेक्ट ऑप्शन पे, ओके। ए फॉर अलाउद्दीन खिलजी और ए फॉर अलाई दरवाजा, ओके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये आंसर तो हमेशा याद रहेगा। वेदा, द वेदा आर रिटन इन विच लैंग्वेज? देखो गाइस, वेदा कह सकते हैं उस टाइम संस्कृत था, सो वैसी सी बात है, संस्कृत में ही लिखा गया होगा वेदा, ओके। सो बैटल ऑफ बुक्सर कौन से ईयर में हुआ था? कितने बार आएगा ये क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है बार बार। 1764 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? किसने करवाया था? महात्मा गांधी ने करवाया था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था उस टाइम? डू और डाई, करो या मरो, ओके। उनका बहुत ही फेमस डायलॉग है ये। हु बिल्ड द फतेहपुर सिकरी? किसने बनवाया था फतेहपुर सिकरी? देखो गाइज, जितने भी अजीबोगरीब से नाम आ रहे हैं ना, फतेहपुर सिकरी, ये सब अकबर ने ही करवाया है, ओके। सारा काम उन्हीं का है, अकबर ने करवाया था। दैट्स ऑल अबाउट इट। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर लोकेटेड है? ओके, विक्टोरिया मेमोरियल ये है कोलकाता में लोकेटेड है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लास्ट कौन है? वो है हमारे सी राजा गोपालचारी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो गाइस, फर्स्ट और लास्ट दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में 100% पूछेगा। रिपीट करते हैं, फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, लास्ट
राजा गोपालचारी, फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, लास्ट सी राजा गोपालचारी। कहाँ के भाई, कहाँ के? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बंगाल, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो गाइस, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, उसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, उसके बाद से वो वाइसरॉय में बदल गया, वाइसरॉय के बाद से हमारे प्रेसिडेंट बनने लगे और उसके बाद से हमारा इंडिया फ्यूल देने लगा। अब इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, क्या बायोलॉजी है, क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री है, वो सब आप पढ़ोगे। पॉलिटिक्स में जब हम बात करेंगे अराउंड दिल्ली कॉलोनियल की और या जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसके पीछे का बैकग्राउंड, यानी कि अराउंड 18th सेंचुरी से ये सब स्टार्ट हो गया था। सो 18th सेंचुरी पूरा पढ़ लो। 18th सेंचुरी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहाँ से ब्रिटिश आए, कैसे ये सब होना स्टार्ट हुआ। सो उसी टाइम हुआ था ये सब, ओके, अराउंड 1700 के बाद ही हुआ था। सो 18th सेंचुरी में ही कहलाएगा ये सब। बैटल ऑफ प्लाजी कब हुआ था? 1757 में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ओके। नाउ कोहिनूर डायमंड कहाँ से लिया था ब्रिटिश ने? गवर्नर जनरल के टाइम पे, लॉर्ड डलहाउसी, ओके, डलहाउसी उस टाइम पे। आर्य समाज कब बना? किसने बनाया आर्य समाज? क्या बताया था मैंने? स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का निर्माण किया। कब किया ये भी तो आएगा ना एग्जाम में, 1875 में किया, ओके, 1875 में। वैसे ये आ भी चुका है, CHSL के 2020 में आया है ये क्वेश्चन, ओके। हु रोट इंडिका, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MTS 2020 में आया है। हु रोट इंडिका, जो कि है हमारा आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। इंडिका को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा, ओके। और यही से हमारा सफर होता है खत्म नहीं बल्कि शुरू। पहले सिर्फ हिस्ट्री है, अभी आगे बहुत बचा है, अभी आगे और भी संडे आएंगे और हर संडे को हम 100 MCQ करेंगे। मीन्स अराउंड 8 संडे हम 800 MCQ करेंगे। वाओ गाइस, 800 MCQ, यू वांट टू बिलीव? हमारे सारे कंसेप्ट, सारे पॉइंट्स, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड 100 हमने आज किया, देन नेक्स्ट संडे वी विल कंप्लीट अगेन 100। नेक्स्ट in short we will complete around 800 MCQs, okay, for per subjects। 800 MCQ बहुत है। 800 MCQ में से आपके एग्जाम में ओनली 4 to 5 क्वेश्चंस आएंगे, इससे रिलेटेड आराम से हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि उसमें ऐसे MCQ है ना, यार देखो चैप्टर 1 है, अब उसमें से कितने ही MCQ बन पाएंगे बताओ? एक ही चैप्टर में देखो, अभी मैंने 100 मैंने निकाला, इसमें बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। कितने MCQ बन सकते हैं? जितने बन सकते हैं हम कोने कोने से सब कुछ निकाल लेंगे, ताकि एक भी कोना रह ना जाए, एक भी डॉट भी हल्की से ना बचे, ओके। जितना बन सकता है उतना बनाएंगे MCQ। एक क्वेश्चन से हम 3-3, 4-4 MCQ को जनरेट करेंगे, उसके बाद से उसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद से कंप्लीट करेंगे। एक बार दोबारा से रिविजन करना चाहेंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ओके। इब्राहिम लोदी कहाँ से? दिल्ली सल्तनत से। बाबर कहाँ से? मुगल एम्पायर से, ओके, मुगल एम्पायर। क्यों हुआ था मुगल एम्पायर? बाबर ने का ये कहना था कि वो मुगल एम्पायर को इंडिया में ही स्प्लिट करेंगे। सेकंड बैटल कब हुआ था? वैसे बाबर ने कौन से पाउडर का यूज़ किया था गाइस? गन पाउडर का यूज़ किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, ओके। सो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में हुआ था, 30 साल के बाद, अराउंड 30 ईयर्स के बाद हुआ था, ओके। किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ओके। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके कब हुआ था? वैसे अराउंड 1761 में हुआ था। दैट्स ऑल अबाउट इट, ओके। आर्य समाज किसने बनाया था? किसने बनाया था गाइस आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनवाया था आर्य समाज, ओके। That's all about it। यहाँ से गाइस जब हमारा होता है ये पूरा फुल कंप्लीट, ओके। एंड अब आगे की चीज़ों को हम करेंगे नेक्स्ट टाइम कवर, ओके, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारा हिस्ट्री हो चुका है फुल कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कोई भी इसमें एक भी क्वेश्चन हमने मिस नहीं किया, सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। ये हो गया है हमारा फुल कंप्लीट। 1 आवर का वीडियो बन चुका है, 35 सेकेंड अभी हुए हैं।
और सेकंड्स हम कुछ और बातें कर सकते हैं। सो मैं कुछ और बातों में यही कहना चाहूँगी कि हमने इसे कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद से अब नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है पॉलिटी का। ओके, ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा 12 बजे, ये वाला वीडियो होगा अपलोड। ओके, 2 बजे आपका होगा पॉलिटी अपलोड हो जाएगा। ओके, 2 बजे पॉलिटी के ऊपर वीडियो बनेंगे। उसके बाद से ज्योग्राफी आपका अराउंड 4 PM पे आएगा और फिर अराउंड 6 PM पे आपका इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा। और यहाँ से हमारा संडे स्पेशल वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट। लेट्स टेक अ ब्रेक लेते हैं 2 आवर्स का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।